Hello, everyone. So today, good evening. Welcome to Geo Destination to Geo for another Toppers Talk. And today we have with us Ipshita Mohapatru, ma'am. So welcome, ma'am. Ma'am, can you please switch on your camera? Yes. Am I audible? Yeah, completely. Yeah, Okay. visible too? Yeah, Am I absolutely. Yeah, okay. Thank you. Good evening, everyone. Okay. So just an intro of ma'am. So ma'am has got AIR All India rank 5 in UPSC GSI 2024, rank 2 in OPSC lecturership, with the results are published today. She is from Dhenkanal, Odisha, and BSc is Stewart Science College, Cuttack. MSc from Banaras Hindu University, and this was her third attempt. She has secured total marks of 694 and secured rank 5. Also, she is a regular classroom student of Geodestination in GateNet GSI batch. So, uh, ma'am, thank you for joining us today here. And where so just beginning with the introduction, like were you expecting such a good rank like AIR 5? What was the reactions back at your home? How were your parents reacted, and how did it come out? When did the results come out? How you expected the results? So all this. Yeah, okay. So thank you, Prajna, for the introduction. Am I audible now? Yeah, continue, Yeah. ma'am. So actually, as far as I remember, it was 23rd of December when the results came out. Actually, I was traveling somewhere. So some text popped up in my WhatsApp like congratulations, congratulations, and then only I get to know that yeah, I got into the list. But when I checked the website and all, then only I knew that, oh my God, it is All India rank 5. I knew that I will be in the list. Like 90% of me was sure, but I never expected this rank. And my family, friends, everyone was so happy. And so we merged that into a New Year celebration. And yes, that's it. Okay, great to hear it, ma'am. So this was your third attempt, right? Yes. The first two were in the first Uh, in like yeah, in the first one, I was continuing MSc from Banaras Hindu University in hmm, 2022. There, I couldn't even qualify prelims with a few marks. But in the hmm, second attempt, I got through interview and I missed the interview by, I guess, 10 to 15 marks. And hmm. this was the third attempt. So, yes, the third attempt I cleared it. Okay, great, ma'am. So as you were a regular classroom student of GateNet GSI and prelims mains interview in Geodestination batch, how was Yes. your overall experience in Geodestination? So, I would surely say that yes, I have worked hard, but nothing would have been possible without the help of Geodestination team. I extend my heartfelt gratitude to the entire team of Geodestination. I have been connected with Geodestination like from the last 3 to 4 years actually, from my MSc like 2021. So like every notes, like I have got through each every notes, all the videos, all toppers talks, test series, and everything. Like they're so properly framed with like the pattern of the examination beat, not only G for the GSI but also for gate net and everything. So the particular test series, the notes and everything, sorry, everything is so aligned. So yes, and of course I will mention their test series for since it is for prelims, I will go through like get through only for the GSI part. The test series is like very good. Please, everyone who have not registered yet, I'm very sure since there are 20 days left, everyone must have been going through some test series. But please go through the test series. And so yes, and apart from the subjective part, like the notes and all, I would also thank the team for the mental support, suggestions, and advice and all. Like I have been in constant touch with them. So yes,
Thank you very much to the entire team. Thanks a lot, ma'am, for such a review. And so, as prelims is just 20 days away, so we will talk about primarily about the prelims today. So, uh, after prelims exam, ma'am, we will discuss about the mains. But for now, let's just focus on prelims. So, ma'am, what students should do in the last 20 days that are left to Hmm. improve their marks, overall marks in both in geology and in GS paper? Yeah, okay. So, okay, so shall I start from the like very started? The Yeah, you can strategy start now? from GS and then Yeah, go to geology like papers. yeah. Okay, sure. Hmm. Thank you. So, yeah, okay. It is already Just, 18th, and just a moment, ma'am. Just a moment. Sorry for the interruption. Just let me tell to all the students that this should be an interactive session. So you can ask your queries, you can ask a doubt, or you can take suggestions from ma'am. She is very experienced, as she told you already that this was her third attempt. So what she has improved upon these three attempts, so you can learn from her, and this should be ideally an interactive session, and you can ask in either in Hindi or English. She is comfortable with both the languages, so don't hesitate and take this opportunity and clear all your doubts regarding last preparation strategy in the last 20 days. Okay, so don't be silent. If you have any queries, just unmute yourself and ask to ma'am. It can be in Hindi, it can be in English. That is not an issue with ma'am. And in case you are due to some reason you are not able to speak up, then you can put your queries in the comment section. Okay. Okay. Thank you, ma'am. yeah. So, shall I start? Yes, ma'am, sure. So yeah, it's already 18. So I guess it's prelims is on February 9th, right? Yeah, I guess so. So like Hmm. only 15 to 20 days are left. Okay. Yeah. So the last minute, we the main thing is that do not take up any new concepts. Okay, be it paper one, be it paper two, anything. Please, this is the last time you should revise and all. Some general tips like that I would like to highlight. There is no single strategy like that will fit for everyone. Do not you go through like everyone's strategy class, but do not forget to focus on yours. What is your strategy, irrespective of like how many types of strategies you listen to? And since exams are near, I'm pretty sure that everyone must have gone through the syllabus. Do not ignore that. Read that line by line. Everything from the syllabus is important. And previous year questions and revision is what you should do now. All the previous year questions, go through them. All the test series you have appeared, practice them, go through the like examples, revise them, everything. Okay, check your notes, go through the facts, and just revise. And very important for the last 20 days, do not overthink. Okay, do not take stress. It's very obvious, like I have also gone through this, but it will be obvious that you will be much stressed, but you only need to carry yourself. But please just be relaxed, stress free, and focus on the things that like coming ahead your way. So okay, I will not go into the mark distribution. I think everyone must be aware that the paper 2 is of 300 marks and paper 1 is of 100 marks. Seats are What less can this be year. safe score, ma'am? What? What can be Sorry. a safe, like a safe score Yeah. for this year? Yeah. I was just going into that. Yeah. See, seats are less this year too. Okay. Geologist may I think 16 seats है. Assistant hydrogeologist का I guess 30 or 32 seats है. So that combines to around 60. But still, as compared to 2023 where there were 216 seats, this year's seats is also low. So at least aim for 30 to 40 mark in paper one. Okay, that's more than enough. You just need to qualify the paper one. You are not joining civil services. Yes, obviously for your knowledge you can gain the knowledge, and that's a total different thing. But since the last 20 days are left, aim for at least 30 to 40. Okay, and do not stress much on the GS paper. Uh,
Also, don't get it too free, because you need to qualify that in order to get your second paper checked. So like a 30 to 40 score would be like more than enough. And for paper 2, go for 220 to 230. You should get at least 100 to 105 questions correct. Okay. So for paper 1, it is like 30 to 40, and for paper 2, it is 220 to 230. And remember one thing, the main thing is that in prelims, you have the opportunity to like maximize your score. Okay. And this thing you will not get in mains or interview. Mains में आपका copy कहाँ जाएगा check होने में? Yeah, it is very sure कि आपने अच्छा लिखा होगा, marks मिलेंगे, but still that you cannot control. You don't have a control on that. So please try to maximize your score as much as possible in prelims. Also interview में पैनल को कैसा लगेगा, तो like there are various factors. So please prelims में like get the best of it, and रिस्क मत लीजिएगा पेपर 1 के लिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. जो भी लास्ट मिनट है, मतलब सबने तो पढ़ लिया होगा सब कुछ. डोंट, एज आई ऑलरेडी सेड, डोंट गेट इनटू एनी न्यू कॉन्सेप्ट्स. जो पढ़ लिया बस वो पढ़ लिया, अभी रिवीजन कीजिए. जीएस का तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स मत लीजिए. हाँ, पेपर 2 आप पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी आप कर रहे हैं बहुत दिनों से, कुछ अगर छूट गया हो तो हाँ, यू कैन गेट अ लुक इनटू दैट, बट जीए पेपर 1 बिल्कुल भी नहीं. So and for paper 1, sorry, okay. Yeah, I'll ask one more question यहाँ पर कि जो मतलब ये जीएस का जो पेपर है, जो पिछले साल ये आया था, the questions were the science questions which I actually saw. The questions were quite I would say like mostly physics based, yeah, calculation based mostly. Calculation based, like I think it was kind of JEE mains type questions, and yeah, it was quite high. The level was quite high. So what kind of questions can we expect from science and also from the papers like geography, history, economics, polity? Yeah, okay, fine. So see, there are like I can see the syllabus, like there are lots of things, like you have science, current events, history, polity, and everything. So if you want to prepare, like most of you have also prepared, if you want to prepare, then go for everything. But what I did was, I focused on only a few topics, like the few subjects. I didn't, to be honest, I didn't get through everything, like history, polity, geography, economics. I didn't get through because I didn't have the time. And also I didn't intend to prepare for civil services. So I kept it at the minimal side, but not so minimal because you need to qualify it. So what I will suggest, I focused mainly on environment, science, and geography. With geology, people can very well like correlate with geography. So do not leave that. And environment is easy to grasp. You just need to know like this is this, this is this, this is the food chain, this is the upward food chain, this is the inward food chain. So, and do not also ignore environment. And in the last minutes, what I will suggest, आपने जो पढ़ लिया, ये सब थोड़ा important topics है, like environment, general science, ये सबको brush up कीजिए आपके concepts को, because general science अगर आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे, तो you can attempt that, because like आप मतलब since you have already like read the basics of physics, chemistry, and bio, that will be easy for you too, as compared to other subjects. And apart from environment and science, I have also focused on political science. I never liked political science during my school days, but yes, but yeah, go through the geodestination videos for political science and environment. Like they're the best of best. To be honest, I didn't follow anything apart from geodestination videos for science. Sorry, for polity and environment. And yes, and history, modern history, also you can get through the NCERT books. Economics, I didn't study much, but I will refer, you can get the concepts clear from, there is a book, Lucent General Knowledge. Also, geodestination videos, I have not seen much of them since I didn't have the time, but please go through them. And apart from this,
general science is most important because every one of us is a science student. Okay. And so as far as I can remember, in 2022, there have been much questions related to organic chemistry. Chemistry, and chemistry. In the last year, it was much about physics. So yeah, I will not tell you that ignore physics, but revise that, but give focus to others like the chemistry, biology. Previous year there was only one question from like botany. I can remember that the xylem phloem questions from. So I'm not pretty much sure, but focus on chemistry, also focus on physics. Do not forget that, because we can say like that कि हाँ पिछली बार physics ज़्यादा आया है इस बार नहीं आएगा. But please do not ignore science. Brush up all your formulas, and for chemistry, be it physics, revise biology. Biology is pretty easy, I guess. So, and environment and geography also. Environment, I have also followed PMF IAS book. Yes, sorry. Yeah, there is. I wanted to ask, like, Lucent. If someone reads Lucent entirely, okay, and suppose someone is not a part of Geodestination right now, and they're just doing the Lucent, and otherwise besides that they are going through the previous year questions, they're going through the syllabus portion, also for the current affairs there is current affairs of all the current affairs that are there. So वहाँ पर current affairs हो गया, and because we are all science, most science students, so science है, Lucent है, इसके मतलब is this enough? Like only the Lucent book. Lucent book, previous year question, then we have a previous year question, Lucent, and what else? The syllabus. Then we have the science, all the revision, basic sciences, the things that we have done, a little bit of also from 11th and 12th portion. If people were preparing for engineering or medical, that would have been like amazing, because Yeah. yeah, mostly they have practiced maths, I mean physics, chemistry, bio in Physics. that level. So physics, chemistry, bio, the concepts especially, I think it will be better if someone solves one of the JEE books. Would you do you think like that? सी लुसेंट का मैं बोलूँगी, लाइक मैंने उससे हिस्ट्री पढ़ा था और पॉलिटिकल साइंस भी उसमें अच्छा दिया, लाइक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है. तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में लाइक इस साल अभी जैसे कुछ टाइगर रिजर्व्स ऐड हुए हैं, तो उसमें एक लिस्ट बना कर दिया, लाइक दिस आर द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, दिस आर द नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स. सो या for geography and that polity, history, it is a very good book. Okay. But I feel like environment ke liye, like if you are going to through Lucent, please add also some other YouTube videos. If you are not a part of Geodestination team, like there are plenty of videos in YouTube for on academy and like various other videos. Please go through them. And for science part, I will recommend like please go through NCRT. That's the basic and the best. Please go through NCRT book. And apart from that, economics, as I told, I have not studied much, like I have not focused that much. So yeah, history, polity, geography, you can go through Lucent. And for the environment, there are plenty of videos, go through that only. And science, please focus on NCRT books. The 8th to 12th NCRT books, please focus on that. Okay, thank you. Okay. So we can go to next paper then. Yeah. Biology. Okay. Also, one thing I will say, as I have already said, there are not much time. So please do not stress on this much. जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, बस खत्म. अब उसको रिवाइज करो. साइंस थोड़ा देखो प्लीज, साइंस, एनवायरनमेंट, वो सबको देखो. बस क्वालिफाई ही करना है. और तो बस वही. Now we, I guess, we can jump into the paper 2. Yeah, also I would mention some things. Current affairs, please give it a read. Go through at least 8 to 10 months of current affairs. Like जिसने पढ़ लिया है, अभी मत कीजिए.
जो सब पढ़ लिया है उसको पढ़ लीजिए. I don't exactly remember, but I guess I went to class 24 videos, Bhunesh sir and Geo Destination videos. Okay. And अभी सब जो recent topics चल रहे हैं ना, like अभी elections हुआ है, budget आया है, so उसका थोड़ा देखिए, like कौन सा आर्टिकल किसको गवर्न करता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन सा स्केड्यूल है, क्या क्या ओथ है स्केड्यूल में, कौन सा स्केड्यूल लाइक कंसर्न्स विथ ओथ टेकिंग, हु अपॉइंट्स हु, कितने टाइप ऑफ बजट है, बॉडी बिल, ये सब थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर हुआ है इलेक्शन. तो हाँ, लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, क्या क्या होता है, कौन किसको चेयर करता है, प्लीज गो थ्रू दैट. हाँ, कोई मतलब आई डोंट फील कि कभी ये आएगा कि हाँ लोकसभा में कितने सीट से, राज्यसभा में कितने सीट से, दे आर वेरी बेसिक. सो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो, बट प्लीज ऑल्सो देख लीजिएगा कि कैसे मतलब क्या होता है, क्या मतलब कैसे डिवीजन क्या हुआ है, क्या आर्टिकल कंसर्न करता है लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन. सो यस. जस्ट अ मिनट, कोई यहाँ पे पूछ रहा है मैम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीजीएसई फ्रॉम बीएससी सेकेंड ईयर, प्लीज रिप्लाई. देखिए, अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे कि जो लोग इस बार अपेयर कर रहे हैं, ये क्लास उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है. जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, मैम के साथ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप शुरू से कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं डिटेल्स में, मेंस के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे. आज का जो क्लास का मोटिव है, ये मोटिव क्या है कि जो नेक्स्ट 20 डेज में हमारा यूपीएससी जो सीजीएसई है 2025, उसका प्रीलिम्स है, तो लास्ट के 20 डेज में क्या हमें करना चाहिए सो दैट हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएगा, उसके ऊपर हमारा जो डिस्कशन है उसी के ऊपर ही हम रखेंगे. कोई इधर उधर नहीं, नेक्स्ट ईयर का बात हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का बात नहीं करेंगे. आज सिर्फ और सिर्फ इसी 20 दिन में हम क्या करेंगे सो दैट हमारा स्कोर मैक्सिमाइज होगा, उसके ऊपर बात करेंगे. और जो लोग बाद में थोड़ा सा ज्वाइन किए, लेट मी समराइज व्हाट मैम सेड, कि उन्होंने ये बोला कि अभी टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो उन सारे टॉपिक के ऊपर आप फोकस करिए जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको रिवाइज करिए. क्योंकि अगर अभी जीएस का नया टॉपिक हम लेंगे तो बहुत ज्यादा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. तो जो भी थोड़ा सा लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया मैम के हिसाब से, साइंस हो गया, या फिर पॉलिटी का सिलेक्टेड पार्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेक्टेड पार्ट्स, इस और जियोग्राफी, क्योंकि जियोलॉजी जो बच्चे हैं वो जियोग्राफी को बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं. तो इसीलिए ये जो पार्ट है जहां से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और जिसको आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए. अभी जीएस का कोई नया कॉन्सेप्ट में मत जाइए, ठीक है. इन्होंने, मैम ने ये बोला. और मैम का जो सोर्सेस था, उन्होंने जैसे जो जितने सारे सोर्सेस थे, इंक्लूडिंग जो भी हमारे जियो डेस्टिनेशन का वीडियोज और नोट्स था, उनके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ से ये चीजें पढ़ लो. लेकिन जो जियो डेस्टिनेशन का पार्ट नहीं है, आप लोगों ने जहां से भी पढ़ाई किया अभी तक, खुद का नोट्स हो, किसी दूसरे कोचिंग से हो, यूट्यूब का वीडियोज हो, या फिर एनसीईआरटी से जो भी पढ़ा हुआ है अभी उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है. अभी लास्ट मोमेंट में जीएस का बहुत सारी चीजें अगर मतलब अभी डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. तो अभी मैम जियोलॉजी के बारे में बताएंगे, जीएस के बारे में डिटेल्स में बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं. अभी मैम जियोलॉजी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे सो दैट लास्ट को 20 डेज में हम क्या करेंगे सो दैट स्कोर मैक्सिमाइज होगा, ठीक है. थैंक यू मैम. Yeah, okay. Also, one thing I forgot, please get an idea about the different days, like Environment Day, Science Day, Yoga Day. All this you can get like all compiled from our YouTube videos. Please get through them. They are also important. There can be questions from them. Also, there was a recent कुछ rankings आया था, किस चीज का आया था मुझे याद नहीं, तो इंडिया का रैंक मुझे exactly याद नहीं आ रहा, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा. वो सब करंट अफेयर्स में आ जाएगा, बट प्लीज वो थोड़ा सब देख लीजिएगा. Right, ma'am. So shall I skip on to the Yeah, geology? we can actually next go to geology portion. Yeah. Okay, see, this is the main thing. Okay, you have studied BSc, MSc, everything. So geology is our strong point. Like we can fetch marks there. And your main focus, that's why I said, your main focus would be on paper 2. And this is the only thing, like you can maximize your score. I told you, like prelims is the best chance to maximize your score. So please get the best out of it. So before the book list things and like what to read the particular portions, I need to tell something. What prelims is all about is like how can you manage your time and how can you tackle the options. Okay, so you need to be very accurate and very fast. Okay,
And to manage your time, actually to manage your time, you need to be very accurate and fast. So please go through all the concepts likewise. What I do is, it's for 2 hours exam. Na? So in the first 10 to 15 minutes, I just go through the question paper. Like what are the questions? Like what questions have come in the exam? And then I start solving. Not on the OMR. Please note this, but on the question paper, do not ever directly skip to the OMR. And in the next 30 to 40 minutes, I just mark my answers on the paper, like what the questions that I'm sure of, at least 60 to 65 questions. And then I turn to OMR. In the next 30 minutes, I like fill up the OMR and start marking there. And then I go for the rest of the questions. Okay. See, like there are different type of questions. Some questions like the matchmaking and all, some questions are there which you like directly know. Like if there is on igneous structure, this is a laccolith, is it a discordant body or it is a concordant or whatever structure, seal stack. They are very direct questions. So these type of questions are like and then there are some questions like which you need to analyze. The matchmaking वाला questions आपको पता हो सकता है लेकिन उसका confuse मतलब sorry options इतने confusing रहते हैं, so you need time for that. Okay. Also for some analytical question, like you need to think of कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, तो yeah, this needs to be the answer. So you need to be fast for those direct questions so as to get the proportionate time for the questions that you need time. Okay, so accurate and fast. Okay, and time management is like very important. आप कैसे प्रीलिम्स में आप कैसे ऑप्शंस को टैकल करते हो? सी 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने इजीली 2 ऑप्शंस उसको एलिमिनेट कर दिए, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट 2 ऑप्शंस इज व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम. सो गेट योर कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप, योर फैक्ट्स चेक्ड, सो यू कैन एटलीस्ट डोंट वॉन्ट वेस्ट योर टाइम इन द डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको बाद में टाइम मिलेगा कि हाँ थोड़ा टाइम है मुझे ये चीज सोचने के लिए या कुछ याद करने के लिए. जैसे स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन, लाइक उसको ऐसे तरीके से रिवाइज कीजिए कि अगर है लाइक अमागांव ग्रुप जैसे बस्तर पैटर्न का है, उसको ऐसे तरह से रिवाइज कीजिए कि हाँ उसको आपको सोचना ना पड़े कि इसके ऊपर क्या था. विंध्यान का सक्सेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कडप्पा का है, तो ऐसे उसको याद रखिए जैसे उसको आपको सोचना ना पड़े. लाइक यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एट दैट टाइम. ओके, एंड यस देयर आर 12 यूनिट्स. Do not skip any unit. Okay, cover all of them, everything, because you will get questions from all unit. Okay, so you just can't like go on canceling unit. Focus on each and every unit. Okay, go through the previous year questions and see how they are framing the questions. See, test series is important for your time management, for your practice, but no test series can be the exact replica of the examination. That can like never. So go through all the previous year questions, and that is like a must. And do not read everything from a book. Like some people do what? They take a book and go on reading everything. No, everything is not important. You need to, that's why syllabus is important. You need to check the syllabus. Like for prelims, I need to study this. Okay, so that's the thing. Do not go on reading everything. Okay. And another thing, apart from books, there are also various websites. Okay, like Tulane University websites, EPG Pathshala. So if there are not any notes, you need precise notes. Notes तो ऐसे geo destination में available है, so that should not be a problem. But the main thing is make your own notes. आप refer कीजिए notes को, but अपना notes खुद बनाइए. That's what I will suggest. Okay. Go through each and every video of geo destination, like at least to make your concepts clear. Like trust me, I have been connected with them since the last 3 to 4 years, and each and every teacher assigned for each subject, like they're just fantastic. So like just go through each and every video of geo destination, make your concepts clear. Okay. Okay, so now I will go into the book list, and everyone actually must like आपने इतना prepare कर चुका है तो सबको तो पता ही होगा कि क्या क्या books पढ़ना है किस चीज के लिए. Still I will get into it, and also मैं थोड़ा बता दूंगी कि अभी last 20 days में क्या क्या चीज focus करना चाहिए. Okay, I have the syllabus with me.
So yeah, okay, for starting with physical geology. Go through GB Mahapatra. We have the textbooks of geology and also the other one. Go through that. Sabinder Singh is also a very good book. Do not read it all, but please go through it. Okay. और क्या क्या पढ़ना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. सविंदर सिंह में पूरा ऐसे लाइक नहीं पढ़ना है, जस्ट उसमें बहुत अच्छा डायग्राम्स दिया है, वो आपको मेंस के लिए हेल्प कर सकता है. सो इसमें आप क्या कीजिए, लाइक फिजिकल जियोलॉजी में फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, the depth, like there's a depth variation, there are velocity changes. So these are very direct questions. You need to remember, like yes, 410 kilometer is the transition zone. ये start होता है 660 में, ये खत्म होता है, and you need to be very precise. इसमें olivine से spinel structure होता है, कहाँ पे wurtzellite होता है, कहाँ पे ringwoodite होता है. Like you shouldn't waste your time in the exam thinking that हाँ ऐसा होता है, ये हुआ था. Please, ये सब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं, सो ये सब देख लीजिएगा. ठीक है. देयर आर क्वेश्चंस. अच्छा, ओके, सॉरी. या थैंक यू. फिर ट्रांजिशन जोन का मैंने बोल दिया, जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करता है, डी डबल प्राइम में कैसे वेलोसिटी मतलब एक पॉइंट पे कैसे वेलोसिटी डिक्रीज करता है. फिर पी वेव, एस वेव, उसका भी देख लीजिए कैसे वेलोसिटी वेरी करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आ गया और क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में उसका जो एविडेंसेस होता है ना, लाइक वेरियस जियोलॉजिकल एविडेंस, मेटेरियोलॉजिकल एविडेंस, कोल था ये जगह पे, कैसा क्लाइमेट था, जैसे एंटार्क्टिका अभी ऐसा कोल्ड है बट उसमें एक टाइम पे मतलब कोल था. सो दे मस्ट हैव बीन जॉइंड टुगेदर. Glossopteris flora, jigs of it, all this you must read, but just go through it. Like these are the important things and questions can come from this. Okay. And sea floor spreading, आपका वाइन मैथ्यूज हाइपोथेसिस है, मैग्नेटिक एनोमलीज थोड़ा देख लीजिए, वो जो सीक्वेंस है ना, ब्रूहेंस, मोतियामा, गॉस सॉरी ब्रूहेंस, मोतियामा, गॉस, गिलबर्ट, ये सब देख लीजिए. और क्या, हाँ ये जो हाँ, और प्लेट टेक्टोनिक्स का बोलूंगी, इसमें एग्जाम्पल्स देख लीजिए. ठीक है. जैसे कि हमारा एंडीज से मतलब क्या ओशियन कॉन्टिनेंट कोलाइजन से कौन सा प्लेट सबडक्ट होता है. ठीक है. एग्जांपल्स देख रहे, वेरी प्रिसाइज अबाउट द एग्जांपल्स. दीज आर जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू कैन नॉट लाइक बी रॉन्ग हियर. अगर ये आपका गलत हो रहा है तो लाइक मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन. सो प्लीज लाइक गेट योर फैक्ट्स चेक, लाइक रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज. ओके. एंड हाँ, जो पर्टिकुलर फीचर्स है ना ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, मैच मेकिंग क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं. ओके. लाइक सपोज ग्लाशियर का हो गया, क्या क्या सब था, एस्कर्स और ग्लासियोफ्लूवियल, सॉरी टिलाइड्स, मोरेन्स, ये सब बहुत कुछ था. आपका रिवर का हो गया, डिपोजिशनल, एस्चुअरी, ये सब. डेल्टा और एस्चुअरी में क्या डिफरेंस है, एक प्रोग्रेडेशनल है, एक रेट्रोग्रेडेशनल, एक एग्रेडेशनल है. ठीक है. ये सब थोड़ा देख लीजिएगा. एग्जाम्पल्स प्लेट टेक्टोनिक्स का देख लीजिएगा. ठीक है. आई गेस फिजिकल जियोलॉजी हो गया. हाँ, वेदरिंग प्रोसेसेस जो है, केमिकल वेदरिंग का थोड़ा देख लीजिएगा. जो रिएक्शंस है हमारा, सब कुछ है ना, लाइक ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है, थोड़ा रिएक्शंस देख लीजिए. फेल्सपार कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, फेल्सपार हमारा काओलिनाइट होता है ना, ब्रेक डाउन होके केमिकल वेदरिंग से, तो वो सब थोड़ा देख लीजिएगा. ओके. प्रोसेस, जो प्रोडक्ट्स वाला चीज है सैंडबॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. सो और फिजिकल जियोलॉजी का तो मोस्टली ये सब हो गया. ओके. और ये सब जो प्रिंसिपल्स है, लाइक यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये एक बार आ चुका है, आपको पता होगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. फिजिकल जियोलॉजी थोड़ा इजी है, इतना हार्ड नहीं है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए. देन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी. ओके. स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बुक्स, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बुक्स में बोलूंगी, मैंने हैकॉन क्वेश्चन पढ़ा था, और एक मार्शक बुक है फॉर आर्ट स्ट्रक्चर. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड बुक. प्लीज गो थ्रू दैट बुक. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, या हैकॉन मतलब बुक्स के अनुसार हैकॉन क्वेश्चन और वो वाला बुक ही पढ़ा था, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था. और अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आपका एक बुक है ना, मृणाल श्रेष्ठा करके एक बुक है,
जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। जीएसआई में ये प्रीलिम्स में ये सब तो नहीं आता, लेकिन स्टिल उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, लाइक हाइड्रोजियोलॉजी का आप देख सकते हैं। सो वो मृणाल श्रेष्ठा को भी थोड़ा एक बार पढ़ के जाइए, लाइक मैं हर एग्जाम के पहले वो वाला बुक पढ़ के जाती हूँ, गेट हो नेट हो कुछ भी हो, थोड़ा याद आ जाता है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बुक, वन वाज हैकन फर्सन एंड स्टीफन मार्सक, स्टीफन मार्सक फॉर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या आर्ट स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, अगर स्टीफन मार्सक है बुक का नाम, ठीक है। तो मृणाल श्रेष्ठा वाला बुक को ना थोड़ा देख के जाइए। एंड हाँ, तो स्ट्रक्चरल का क्या हो गया, सॉरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेन एलिप्सॉइड देख लीजिएगा। स्ट्रेन का जो सब है ना, वन या आर्ट स्ट्रक्चर बाय स्टीफन मार्सक। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एलिप्सॉइड का देख लीजिएगा। और स्ट्रेन का सब जो होता है ना, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस, वो सब जो फॉर्मूला होता है, एलोंगेशन स्ट्रेच, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। और मोहर सर्कल, ओके, और मोहर सर्कल के रिलेटेड जो डेविएटोरिक स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, ठीक है। एक बार गेट में क्वेश्चन आया था वो जो कि कैसे शिफ्ट होता है वो सर्कल, इसके लिए भी थोड़ा देख लीजिए उसका फॉर्मूला, डेविएटोरिक स्ट्रेस का क्या, वो कैसे डिफरेंट है, डिफरेंशियल स्ट्रेस से वो कैसे डिफरेंट है, मीन स्ट्रेस क्या है, ये सब। और जो एक डिफरेंट स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस है, एक डायग्राम है ना मोहर सर्कल का, अगर बाई एक्सियल है तो मोहर सर्कल कैसे होगा, अगर यूनी एक्सियल है कैसे होगा, अगर हाइड्रोस्टैटिक है कैसे होगा, देयर कुड बी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एज वेल, ओके। सो वो मृणाल श्रेष्ठा में बहुत अच्छे से दिया है, बस डायग्राम्स को डिपिक्ट करके, डू नॉट इग्नोर दैट, प्लीज गो थ्रू दैट। और यंग्स मॉडुलस, बॉल्क मॉडुलस, वो सब चीज तो देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, हाँ, जो प्लानर एंड लीनियर स्ट्रक्चर्स है, फोल्ड्स फॉल्स तो आप पढ़ते आ रहे हैं लाइक बीएससी से। ये थोड़ा फोलिएशन लिनिएशन, थोड़ा जैसे क्या क्या अपना फाइलोसिलिकेट मिनरल से कैसे वो अलाइन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोलिएशन, फोलिएशन एंड लिनिएशन लाइक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। फोलिएशन में एससी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। शियर सेंस इंडिकेटर्स देख लीजिए, ओके। और क्या आएगा इसमें, हाँ, लिनिएशन का टाइप ऑफ लिनिएशन देख लीजिए, जैसे क्रेन्युलेशन लिनिएशन है एक हमारा आता है ना, एक पेनी स्ट्रक्चरल का थोड़ा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल लाइक क्लियर होना चाहिए। तो आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि लाइक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इतना तो डायरेक्टली स्ट्रक्चरल से आता नहीं है। सो लाइक स्ट्रक्चरल के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। और ये फॉल्ट रिलेटेड हमारे सिलिकन लाइन्स लिनिएशन से वो सब थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ये जो ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन है ना, उसका डेप्थ देख लीजिए, ठीक है। जैसे ब्रिटल का क्या, ब्रिटल के लिए क्या कंडीशन से, डक्टाइल के लिए क्या कंडीशन से, which rock corresponds to which zone, जैसे हमारा है ना माइलोनाइट डक्टाइल का होता है, देयर कुड बी मैच मेकिंग फ्रॉम दिस और डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, उसको देख लीजिए। ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, कौन से डेप्थ पे होता है, सम 15 to 20 किलोमीटर पे वो होता है, उसको देख लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रॉक्स तो मैंने बोल दिया। ओ हाँ, हैकॉन फंक्शन में आपने देखा होगा, एक है ना, एक डायग्राम है, फॉल्ट गॉज क्या है, फॉल्ट ब्रेशिया क्या है, किसमें विजिबल फ्रैगमेंट्स, वो सब जो लेस देन 30%, ग्रेटर देन 30%, वो सब ना एग्जाम के टाइम याद आता नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा रिवाइज करके जाइए कि हाँ, अगर लेस देन 30% या ग्रेटर देन 30% याद आ भी जाए तो कौन सा क्या था वो थोड़ा याद नहीं आता, तो उसको थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन का तो मैंने बोल दिया। हाँ, वी रूल भी देख लीजिए, देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एज टू हाउ लाइक कौन सा केस में अपस्ट्रीम होगा, कौन सा केस में डाउनस्ट्रीम होगा। ये तो बांगर में भी है, लेकिन आप वो स्टीफन मार्सक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से देख लीजिए, लाइक वो होता है ना कैसे अपराइट फोल्ड का कैसे होगा स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, थोड़ा उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कभी कभी पोल्स का पूछ लेता है, तो वो पोल्स क्या मतलब ऐसे 90 डिग्री हो जाता है ना, तो वो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और फ्लूटी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, कौन सा कैसा है, लाइक जेंटली इंक्लाइन, मॉडरेटली इंक्लाइन, फ्लूटी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। Apart from that, okay, I guess structural is over. Okay, then mineralogy. Mineralogy के लिए बुक ऑल मैंने डेक्स्टर पर्किंस पढ़ा था, ठीक है, डेक्स्टर पर्किंस एंड नेसे, ओके। इसका बोलूंगी प्लीज गो थ्रू ऑल द मिनरल ग्रुप्स, ओके।
in Nesse, like particular in Nesse book, you must have seen like at the end of each description, मतलब pyroxene के end में, amphibole के end में, there are distinguishing characters. Suppose ऐसे मतलब Nesse book में क्या दिया है, pyroxene को differentiate किया है on the basis of like orthopyroxene, low calcium clinopyroxene and clinopyroxene. So you need to see that how orthopyroxene is different from clinopyroxene. Okay, there have been questions as well in the previous in 2023, I guess there have been questions from Micah, like on the basis of 2B angle, how that was a statement question, which one is correct or which one is wrong, that type of question. In like how can you separate, there is an option like Muscovite and biotite are separated from this and this, like some has a greater 2B angle, which one has a less 2B angle, तो वो सब थोड़ा देख लीजिए. इवन एक बार ओलिविन का भी आया था, शायद पिछली बार ओलिविन का आया था. सो नेस्से बुक से थोड़ा वो एट द एंड ऑफ सब दिया है, मतलब हैंड स्पेसिमेन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो वो तो ठीक है ऑब्वियसली, लेकिन वो थोड़ा देख लीजिए हैंड स्पेसिमेन में कैसे डिफरेंशिएट होता है एंड थीन सेक्शन में कैसे होता है. ठीक है. और क्या है, एक्सोल्यूशन. ओके, एक्सोल्यूशन 2023 में हुट्टेनलोचर, बॉगलिड, इंटरग्रोथ, ये सब कुछ कुछ प्लेजियोक्लेज एक्सोल्यूशन, ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स आए थे. ठीक है, लेकिन प्लेजियोक्लेज का अपार्ट फ्रॉम प्लेजियोक्लेज का पायरोक्सिन में भी एक्सोल्यूशन होता है. तो नेस्से बुक में जो पायरोक्सिन का डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें आप देखिएगा जियोलॉजी ऑफ पायरोक्सिन से, उसमें थोड़ा मेंशन किया हुआ है कि पायरोक्सिन में कैसे क्या क्या एक्सोल्यूशन होता है. ठीक है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा रहता है ना कि हाँ प्लेजियोक्लेज देख लिया हो गया, लेकिन नहीं, मतलब पायरोक्सिन में भी होता है, तो दैट कुड बी अ इम्पोर्टेंट थिंग. एंड हाँ, सॉलिड सोल्यूशन देख लीजिए नेस्से बुक से, कैसे मतलब क्या चीज होता है, सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सोल्यूशन, ओमिशन सॉलिड सोल्यूशन, ये सब चीज. और पॉलीमॉर्फिज्म तो मोस्टली मतलब इजी है, समझ आ जाता है, उसका एग्जांपल्स को देख लीजिए. ठीक है, जैसे अल्फा क्वाड और बीटा क्वाड कैसे रिलेटेड है, एक ग्रेटर देन 573 डिग्री सेल्सियस है, एक लेसर देन 573 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें मतलब क्या चेंजेस होता है, तो वो सब पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, लाइक बीटा क्वाड कन्वर्ट्स टू अल्फा क्वाड, तो कौन सा होता है, रिकंस्ट्रक्टिव है, डिस्प्लेसिव है, डिसऑर्डर है, वो सब एग्जांपल्स देख लीजिए. लाइक ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड यू कैंट अफोर्ड टू लूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, और क्या रहा मिनरलोजी में, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स. हाँ, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स का तो हाई तो इजी है, बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं. क्वेश्चंस आ जाता है SI:O या O:SI रेशियो. तो क्वेश्चंस को भी ठीक से देखिए, पढ़ तो लिया आपने, लेकिन क्वेश्चंस को भी देखिए कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या है. ये ना हो कि उसने SI:O पूछा है, आपने O:SI कर दिया है. ये लाइक वेरी लाइकली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो एग्जाम हॉल में थोड़ा कूल माइंडेड रहिए, ये सबको थोड़ा मतलब फोकस से देखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये तो अपना ये क्या GBA मूल बांगर है ना, उसमें सब जो दिया है मतलब ऐसे आइसोमेट्रिक सिस्टम का क्या क्या सब है, क्यूब, डोडेकाहेड्रन, टेट्राहेक्साहेड्रन, ये सब क्या क्या फॉर्म्स उसके अंडर आते हैं, वो सब थोड़ा देख लीजिए. ओके, और तो हाँ बस ये गया. Okay, igneous petrology. There have been some texts in the comments box. Okay, yeah. So starting with igneous, magma, थोलेटिक और काल्कालाइन का एक ट्रेंड है. ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देख लीजिए. ठीक है, एक टर्नरी डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, लाइक आयरन एनरिचमेंट ट्रेंड होता है थोलाइट में, बट काल्कालाइन में नहीं होता है. एक रिड्यूस्ड है, एक ऑक्सीडाइज्ड है, इसमें आयरन एनरिचमेंट क्यों नहीं है, ये सब थोड़ा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोलेटिक और काल्कालाइन से, और डिफरेंस क्या है देख लीजिए. देन IUGS क्लासिफिकेशन का सब डायग्राम जो कुछ भी है, जैसे ओलिविन क्या क्या सब था ना, उसको थोड़ा सब कुछ देख लीजिए. ठीक है, ऐसे शायद ओलिविन ये सब था ना, वेहरलाइट था ना, उसका ऐसे 2023 में आई गेस क्वेश्चंस पूछा था डायरेक्ट कि इतना इतना ओलिविन, इतना प्लेजियोक्लेज, इतना ये सब है, तो ये क्या हो सकता है, उसको देख लीजिए. IUGS क्लासिफिकेशन इजी है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द डायग्राम, प्रैक्टिस देम आल्सो. बाकी सब तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन वो जो
QAPF है वो थोड़ा ऐसे याद नहीं रहता, जैसे क्वार्ट्ज, अल्काली साइनाइड, मोन्जोनाइट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। टास्क डायग्राम्स देख लीजिए। टास्क डायग्राम्स में 5 ग्रेन रॉक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या कैसे वो टास्क डायग्राम थोड़ा देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम देयर टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, आप हाँ, और एक बात है, इग्नियस पेट्रोलॉजी आप मोस्टली विंटर से फॉलो कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्सचर्स वाला चीज है ना, ये टेक्सचर्स और रॉक टाइप्स आप MK बोस से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा दिया है उसमें। टेक्सचर्स का देख लीजिए, जैसे ग्रानोफायर टेक्सचर है, मायर मेकाइट है, क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज से इंटरग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे ग्रानोफायर इंटरग्रोथ अगर कोर्सन हो गया तो वो हो गया ग्राफिक इंटरग्रोथ, ठीक है। बोथ में क्वार्ट्ज फेल्सपार रहता है, ठीक है। या फिलपॉट्स इज ऑल्सो ए गुड बुक, यू कैन गो फॉर दैट। सो हाँ, तो इंटरग्रोथ वाला चीज देख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर, और ऐसा एक दिया है टेक्सचर्स इन बसाल्ट। विंटर में आप देखिएगा टेक्सचर्स इन बसाल्ट दिया है, तो उस या आई विल गेट इनटू दैट। टेक्सचर्स का एक दिया है, कैसे ऑफिटिक, सब ऑफिटिक, हेलो ऐसा सब होके ट्रांजिशन दिया है उसमें, वो वाला थोड़ा देख लीजिएगा। और पायरोक्सिन कैसे प्लाजियोक्लेस को एनवेलप करता है, या वाइस वर्सा, किसमें क्या होता है, किसमें ग्लास डोमिनेंट है, किसमें ग्लास डोमिनेंट नहीं है, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, फेस, हाँ या फेस डायग्राम्स के लिए MK बोस ही देखिए। ओके, फेस डायग्राम्स के लिए MK बोस ही देखिए, और उसका देखिए मतलब क्या क्या चीज है, उसका एक होता है ना क्या सिग्निफिकेंस, हाँ सिग्निफिकेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फेस डायग्राम्स का। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आता है ना, मतलब ये पॉइंट पे क्या क्या होगा, एक रिएक्शन दे देता है, ऐसा होगा, तो वो अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर है तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहाँ पे कैसा होगा, P+F=C+2 वो वाला चीज है ना, उसको थोड़ा देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि C+2 लेना है, C+1 लेना है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। ओके, स्ट्रक्चर्स मतलब कौन सा डिस्करेंट है, कौन सा कंकरेंट है, ये सब थोड़ा GBM से देख लीजिए। ओके, टेक्सचर्स का मैंने बोल दिया, इससे देख लीजिएगा MK बोर्ड से, ठीक है। ऑल्सो आप विंटर में भी देख सकते हैं, विंटर में भी टेक्सचर्स अच्छा दिया है। एप्लीकेशंस भी हो गया। हाँ, अब आ गया रॉक टाइप्स। रॉक टाइप्स देखिए, रॉक टाइप्स अभी तो आप जितना पढ़ लिए हैं। रॉक टाइप्स मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी रॉक टाइप्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना। ग्रेनाइट्स का आप देख लीजिए, SIAM क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके साथ एसोसिएटेड ओर्स क्या है, जैसे हमारा आई टाइप का हो गया, ये इकोनॉमिक में भी आ सकता है, ये इग्नियस में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आई टाइप का हो गया पोर्फायरी कॉपर, S टाइप का आपका हो गया टीन, ये सब थोड़ा देख लीजिए। कौन सा मतलब कितना ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा पर अल्कालाइन है, पेरालुमिनस है, ग्रेनाइट्स का ये सब भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो Al2O3 के बेस पे एक जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे पर अल्कालाइन, पेरालुमिनस, मेटालुमिनस, वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसका होता है ना Al2O3 ग्रेटर देन Na2O प्लस K2O, किसमें लेस देन Na2O प्लस K2O, ये सब थोड़ा देख लीजिए। और बसाल्स, हाँ बसाल्स का, बसाल्ट टेट्राहेड्रॉन का आई डोंट रिमेम्बर क्वेश्चन आया था, लेकिन उसको देख के जाइएगा, क्योंकि उसमें है ना प्लेन ऑफ सिलिका सेचुरेशन, प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सेचुरेशन, वो जो डायग्राम एक दिया है विंटर बुक में, उसको देख के जाइएगा, ठीक है। और अल्कलाइन रॉक्स का, अल्कलाइन रॉक्स का किम्बरलाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किम्बरलाइट, लैम्प्रोफेयर और कार्बोनाटाइट से आपका एक जो है ना फेनिटाइजेशन प्रोसेस एक है, जिसमें वो जो वॉलरॉक से मेटासोमेटिज्म के लिए वो चेंज हो जाता है, एनरिच्ड हो जाता है LRE इनकम्पैटिबल एलिमेंट से। तो फेनिटाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया था कि क्या क्या मतलब क्या क्या चेंजेस होता है, एजिरिन होता है, रिबेकाइट होता है, एस्फेटसोनाइट, ये सब एनरिच्ड वाले चीजें है, ठीक है। उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और किम्बरलाइट का एक मॉर्फोलॉजी रिलेटेड एक चीज है, मतलब जैसे डाइट्रिम हो गया, हाइपरबिसल हो गया, उसको थोड़ा देख लीजिए। और ये याद रखिए कि अल्कलाइन रॉक कोई सा भी हो, उसमें मेंटल मेटासोमेटिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मेंटल मेटासोमेटिज्म इज द प्रीकर्सर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अल्कलाइन रॉक। ओके, उसको थोड़ा याद रखिएगा। मेंटल मेटासोमेटिज्म तो मेंस का कोर्स में मतलब सिलेबस में इसमें नहीं है,
but still just keep in mind that mental metasomatism is the precursor for all alkaline rocks. Okay. I guess igneous का भी हो गया. मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक के लिए भी विंटर ही बेस्ट बुक है, ठीक है. एंड ऑल्सो और एक बात मैं बोलूंगी, विंटर एंड ऑल MK बोस ये सब तो गुड बुक्स है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट डू नॉट फॉरगेट अर्थ मटेरियल. ओके, मैं हमेशा अर्थ मटेरियल पढ़ती हूँ. लाइक जैसे आपने विंटर में देखा होगा, एक चैप्टर है जैसे आइलैंड आर्क माग्मास का एक अलग चैप्टर है, फिर अपना ओशन आइलैंड बसाल्ट का एक अलग चैप्टर है. तो उसमें क्या है, वो सैंपल का एग्जांपल दे के उसको समझाया है, लेकिन अर्थ मटेरियल में क्या किया है, पूरा डायरेक्ट लिख दिया है कि हाँ ये चीज है. तो उसको पूरा देख लीजिए कि हाँ आइलैंड आर्क बसाल्ट जो सबडक्शन रिलेटेड होते हैं ना, वो Al2O3 ग्रेटर देन 16% होता है, ये सब चीज. और मोर्ब और OIB में क्या डिफरेंस है, कौन सा एनरिच्ड है, कौन सा लेस एनरिच्ड है, वो सब भी थोड़ा अर्थ मटेरियल में डायरेक्टली दिया है, वो सब देख लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, yes. Do you have any questions? No, someone just muted, like unmuted. So, do you have any questions? Hello. You can write it in the chat box. You can write it in the chat box. Yeah, she muted. Okay. So yeah, मेटामॉर्फिक के लिए अब विंटर से पढ़िए. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि डायजेनेसिस और मेटामॉर्फिज्म, लिमिट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म से क्वेश्चन था. वो 150 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस वाला था ना, तो वो ऐसे इजी लगता है, लेकिन उसको भी देख के जाइएगा, ठीक है. तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन से पूछ लेता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से आप उसको ऐसा रिवाइज कीजिए कि आपको एग्जाम में और सोचना ना पड़े कि प्लस माइनस क्या था, 150 था, 200 था, ठीक है. और कंट्रोल्स ऑफ रोल ऑफ फ्लूइड्स देख लीजिए थोड़ा, और रोल ऑफ फ्लूइड्स और टेम्परेचर का क्या रोल है, ठीक है, ये सब देख लीजिए. और प्रेशर की वजह से जो फोलिएशन होता है, कैसे फोलिएशन अलाइन होता है, वो सब देख लीजिए, ठीक है. और हाँ, मेटामॉर्फिक टेक्सचर्स का आप विंटर में जो दिया है ना मेटामॉर्फिक टेक्सचर, उसके लास्ट पेज में जो टेक्सचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, एक लास्ट पेज में कंबाइन उसको कंपाइल करके दिया हुआ है, उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पे सिन एंड पोस्ट टेक्टोनिक पोरफायरोब्लास्ट से विंटर में वही टेक्सचर्स के चैप्टर में दिया हुआ है, किसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. अभी मुझे एग्जैक्टली मतलब याद नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन टेक्सचर्स वाले चैप्टर में वो है, उसको थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है. पोस्ट टेक्टोनिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्री टेक्टोनिक है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हेलिसाइटिक फोल्ड्स कैसे किसमें होता है, ठीक है, ये सब थोड़ा देख के जाइएगा. और SC स्ट्रक्चर्स, ये सब तो मैंने पहले बताया था, स्ट्रक्चरल में शियर सेंस इंडिकेटर, वो सब देख लीजिएगा. एंड मेटामॉर्फिक जोन, हमारा जो पेलिटिक रॉक्स का है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे क्लोराइट, बायोटाइट, वो सीरीज है ना, एंडेलोसाइट, गार्नेट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, ये सब का जो रिएक्शंस होता है, ईच जोन में क्या क्या रिएक्शन होता है, तो मेटामॉर्फिक रिएक्शंस पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है. वो रिएक्शंस थोड़ा देख लीजिए, और कौन से जोन में क्या स्टेबल है, क्या स्टेबल नहीं है, वो सब भी देख लीजिए, ठीक है. कौन सा मिनरल स्टेबल है, ओके. जैसे विथ मतलब जैसे हम जाते हैं टुवर्ड सिलिमेनाइट, क्लोराइड डिसअपियर कर जाता है, तो ये सब ना थोड़ा दिमाग में रखिए, ठीक है. और हाँ, फेसिस का कॉमन है ये सब, जो एक पर्टिकुलर जो मिनरल एसोसिएशन होता है, जैसे एम्फीबोलाइट का हो गया हॉर्नब्लेन प्लेजियोक्लेस, इक्लोगाइट का हो गया पायरोप ओम्फासाइट, ठीक है, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, फेसिस सीरीज में एक है आपका अर्थ मटेरियल से मैंने ये पढ़ा था, फेसिस सीरीज का एक जियोथर्मल ग्रेडियंट है, ठीक है. जैसे कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म का हो गया लाइक ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, जब हम फ्रांसिस्कन के अराउंड आते हैं वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाता है, तो उसको देख लीजिए. और फेसिस सीरीज में कैसे वो फेसिस चेंजेस होता है, जैसे फ्रांसिस्कन में क्या होता है, ऐसे जियोलाइट, उसके बाद क्या ब्लू सिस्ट, इक्लोगाइट, ये सब थोड़ा देख लीजिए, वो सीक्वेंस डायरेक्टली आ जाता है, उसको थोड़ा देख लीजिए, ओके.
मेटामॉर्फिक का तो बस आई गेस हो गया। उसके बाद सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी में मोस्टली मैंने पूरा गैरी निकोल्स ही फॉलो किया था, गैरी निकोल्स एंड सैमबर्ग्स। सैमबर्ग्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डिपोजिशनल एनवायरनमेंट मैंने मोस्टली सैमबर्ग से, सॉरी, गैरी निकोल्स से देखा था, बट टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स, ये सब जो चीजें हैं ना, इसको मैंने सैमबर्ग से देखा था। तो इसमें जस्ट अ मिनट, सेडिमेंट्री में क्या करना है आपका, क्या क्या है। सेडिमेंट्री टेक्सचर आप सैमबर्ग से देखिए। ये ग्रेन साइज स्केल का देख लीजिएगा, वो जो ग्रेटर देन 256 क्या लिमिट्स है, उसमें क्या रेंजेस है, क्या क्या। और 5 स्केल भी देख लीजिएगा, वो किस मतलब कैसे कन्वर्ट होता है, उसको भी देख लीजिए, 5 स्केल एंड क्रुम्बेन स्केल। ओके, प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स भी आई विल सजेस्ट सैमबर्ग से देखिए। मैंने उसको ईपीजी पाठशाला में से भी पढ़ा था, उसका नोट्स, तो उसको भी देख लीजिए। पैलियो करंट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पैलियो करंट एंड टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर्स। ओके, और प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स में थोड़ा याद रखिएगा, वो जो सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, जो फ्लूइडाइजेशन होता है, लिक्विफेक्शन होता है, डिसेंट पिलर स्ट्रक्चर्स, ये सब थोड़ा देख लीजिए। ओके, मोस्टली इम्पोर्टेंट है क्या अपना वो जो, जस्ट अ मिनट, हाँ, पैलियो करंट इंडिकेटर और टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ये जो ग्रेन साइज स्केल है उसको तो देखिएगा। और एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, सिविंग। ओके, सैमबर्ग्स में आप उसको देख सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस वेज, लाइक हाउ वी कैन मेजर द लाइक ग्रेन साइज। बहुत सारे वेज उसमें दिए हुए हैं। लास्ट ईयर आई गेस ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब एक लिमिटेशन था, सीविंग हम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स एक रेंज है उसका, उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन एंड कार्बोनेट रॉक्स, आपका डॉट्स क्लासिफिकेशन है, मैट्रिक्स है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। ग्रेटर देन 15% है, लेस देन 15% है, ग्रेटर देन 15% होगा तो क्या होगा, ये सब ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सब को लाइक आप अगर लूज कर देंगे तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। लाइमस्टोन क्लासिफिकेशन, ग्रेटर देन 10% मड है, लेस देन 10% मड है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। आई गेस डुनहाम्स क्लासिफिकेशन था ना, हाँ। बेफेल, वो जो बाउंड स्टोन का भी एक अभी क्लासिफिकेशन मतलब था, बेफेल स्टोन है, वो सब थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद ये हो गया, हाँ। और एक, हाँ, डायजेनेसिस ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट, इसको आप सैमबर्ग से देखिए, मैंने भी सैमबर्ग से पढ़ा था। सिलिसिक्लास्टिक का भी मैंने सैमबर्ग से ही पढ़ा था, ठीक है। कार्बोनेट सेडिमेंट्स में आपको एक आई गेस गेट में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग सीमेंट्स। ओके, आइसोपेकस सीमेंट्स, मेनिस्कस सीमेंट्स, उसको डायजेनेसिस को वो 3 रेल्स में डिवाइड किया है। एक मराइन रेल्म है, एक फिर बारी होते होते मेटियोरिक रेल्म है, और ऐसा कुछ था। तो किस रियल में कौन सा सीमेंट्स फॉर्म होता है, किसमें आइसोपैकस होता है, किसमें मेनिस्कस होता है, दैट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, क्योंकि गेट में आया था। प्रीलिम्स का तो मुझे याद नहीं कभी आया है कि नहीं, लेकिन दैट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, सो गो थ्रू दैट। और सिलिसिक्लास्टिक डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में, सिलिसिक्लास्टिक डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में आप थोड़ा देख लीजिए, आपका डेल्टा, एस्चुअरी, ये सब देख लीजिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है, मैंने उसको फिजिकल जियोलॉजी में भी बताया था, कौन सा प्रोग्रेडेशनल है, कैसे, उसमें डिफरेंस क्या है, मोस्टली वो कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, वो सब थोड़ा देख लीजिए। और शैलो मैराइन डिपोजिशनल एनवायरनमेंट थोड़ा देख के जाइए। वो एक है ना, मतलब हाई टाइड लाइन के ऊपर क्या है, लो टाइड लाइन के बिलो क्या है, फोर सोर, सोर फेस, ऑफशोर ट्रांजिशन, ऑफशोर, ठीक है। इसका ये जो डेप्थ रेंजेस है ना, कौन किसके बीच आता है, ये थोड़ा देख के जाइए। ये गैरी निकोल्स में पर्टिकुलरली मेंशन्ड है, शैलो मैराइन पार्ट, आई गेस शैलो मैराइन डिपोजिशनल एनवायरनमेंट चैप्टर में। तो वो मतलब डेप्थ, मतलब कैसे क्या चेंजेस होते हैं, उसको थोड़ा देख के जाइए, ठीक है। डायजेनेसिस हो गया। ओके, पैलिएंटोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। और पैलिएंटोलॉजी का मैं बोलूंगी, जितना पढ़ा है, पैलिएंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी दोनों के लिए बोलूंगी, जितना पढ़ा है उसको उतना तक रखिए। पैलिएंटोलॉजी अगर आप मतलब कितना भी पढ़ ले, लाइक आई फील कि लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है, कितना भी पढ़ लो, लाइक सब क्वेश्चंस पैलिएंटोलॉजी का अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सब कुछ ऐसे याद नहीं आता,
ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी आपने जितना पढ़ा है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट, ओके। अमल दास गुप्ता इज द बेस्ट बुक। मैंने अमल दास गुप्ता फॉलो किया था मेंस के टाइम में। अनंत रमन मैंने फॉलो किया था मेंस के टाइम में, फिर अमल दास गुप्ता फॉलो किया था, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी का इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि हाँ कैसे याद करना है, ये सब इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। उसको जो प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन है, ये जीबीएम में है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज है, इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये अनंत रमन में मेंशन है, ठीक है। एक बायो कॉन्सेप्ट है, एक मॉर्फो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो इवोल्यूशन इन इक्विडे होमिनिडे, मतलब क्या, किसके बाद क्या आया है, इयोहिपस, ओरोहिपस, मेसोहिपस, इसका जो रेंज है, कौन सा कब आया था, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हाँ, फोरामिनिफेरा, ऑस्ट्राकोडा, ये सब का माइक्रोफॉसिल्स में देख लीजिएगा, मतलब उनका साइज क्या है, ठीक है। लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और गोंडवाना फ्लोरा, जैसे पैलियो क्लाइमेट के हिसाब से गोंडवाना फ्लोरा चेंज होता है। जैसे लोअर गंडवाना में क्या क्लाइमेट था, ठीक है। अपर गंडवाना में क्या था, इसमें अपर गंडवाना में टिलोफाइलम था, फिर उसके बीच में एक डाइक्रोइडियम है। ये मैं भूल जाऊंगी, पहले से बता देती हूँ। गंडवाना का एक 3 स्टेज क्लासिफिकेशन, एक 2 स्टेज है, ठीक है। उसका थोड़ा देख लीजिएगा कि 2 स्टेज में जो क्लासिफिकेशन है, वो बहुत डिफरेंट ऑथर्स ने प्रपोज किया कि पांचेट फॉर्मेशन के ऊपर एक बाउंड्री है या नीचे है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्चुअली मोस्टली इंटरव्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछा गया है, लेकिन स्टिल जस्ट गेट एन आइडिया, ओके। और पैलियोलॉजिकल ट्रिपाइट्स, ब्रैचियोपोडा, ये सब मॉर्फोलॉजिकली आपने जो पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा, इतना नहीं बोलूंगी। हाँ, और बात बोलूंगी, पैलियोलॉजी का मतलब आपने जो अंतर से पढ़ा है, अंतर जो हर एक बारे में उसमें लिखा गया है, ठीक है। अगर आप चाहें अगर टाइम है तो उसको देख लीजिएगा। 2020 में क्वेश्चन रिलेटेड जुरासिक का वर्ड, वो आपको मिल जाएगा कि हाँ जुरासिक का फर्स्ट पार्ट है, पैलियोलॉजी का आइडिया पर्सपेक्टिव तक जान है, लेकिन उसमें एक और चीज। Your voice is Okay, breaking. okay, just a minute. Yeah. Okay. Now it's okay. Is it clear now? Yeah. Is it okay now? Now it's okay. Yeah. हाँ. Okay. Just a minute. Am I audible now? Is it clear? Yes, ma'am. It's clear now. या हाँ, तो पैलियोंटोलॉजी का क्या बोल रही थी कि स्ट्रैटिग्राफी का, पैलियोंटोलॉजी का आपने पढ़ लिया अनंत रमन से, लेकिन स्ट्रैटिग्राफी का जो बुक है ना, रविंद्र कुमार, अभी एक सेकंड पब्लिकेशन है उसका, उसमें आपने देखिएगा जो सिनोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कौन से एरा में क्या था, तो वो क्वेश्चन में बोल रही थी ना, जुरासिक क्वेश्चन आया था 2023 में, जुरासिक का फर्स्ट बर्ड क्या है, और वो ऑप्शंस था, और कहाँ, मतलब कहाँ पहले डिस्कवर हुआ था। उसका आंसर तो होगा आर्कियोप्टेरिक्स इन जर्मनी, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स तो आपको पता चल गया कि हाँ पैलियोंटोलॉजी का, ठीक है, आपको पता चल गया। लेकिन जो जर्मनी वाला चीज है ना, मैंने वो पढ़ा था रविंद्र कुमार से, ठीक है ना, उसमें मेसोजोइक में वो क्लियरली मेंशन्ड है, तो इसलिए बोलूंगी मतलब पैलियोंटोलॉजी का स्ट्रेटिग्राफी का जो रविंद्र कुमार है, उससे भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा एरा में क्या क्या सब था, कौन से फॉसिल्स थे, थेकोडोन्स थे, कोडोन्स थे, डायनासोर्स थे, किसमें क्या थे, वो थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। और आई गेस इक्विडे का और होमिनिडा का मैंने बोल दिया, उसको थोड़ा सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक है। गोंडवाना फ्लोरा भी देख लीजिएगा, वो उसका पैलियोक्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, वो मतलब एक कंटेंट पैलियोक्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा गोंडवाना फ्लोरा का, ओके। देन कम टू स्ट्रेटिग्राफी। और हाँ, पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी का मैं बोलूंगी, प्लीज हर दिन उसको रिवाइज कीजिए, लाइक दे आर वेरी वोलाटाइल, आपके दिमाग से उड़ जाता है, मतलब कोई भी हो ऐसा याद नहीं रहता है हमेशा, तो उसको कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी डे, रिजर्व एटलीस्ट 1 hour फॉर पैलियोंटोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी, लाइक इन अ डे।
आप जो भी रिवाइज करें पैलेंटोलॉजी हमेशा रिवाइज, हर दिन रिवाइज कीजिए। और स्ट्रैटिग्राफी उसका सक्सेशन है ना, सो मतलब सक्सेशन वो डायरेक्ट है, आपको पूछ लिया कड्डप्पा का इसके ऊपर क्या है, तो यू नीड टू वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट, यू लाइक उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको हर दिन रिवाइज कीजिए, ठीक है। और इसके लिए आप स्ट्रैटिग्राफी का बहुत लोग सेनोजोइक को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सेनोजोइक थोड़ा उसको भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका तो मोस्टली आप रविंद्र कुमार से भी पढ़ सकते हैं, और वैद्य रामाकृष्णन वैद्यनाथन ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लॉज है स्ट्रैटिग्राफी के, ठीक है। लॉ ऑफ फनल सक्सेशन, सुपरपोजिशन, हॉरिजॉन्टैलिटी, ये सब क्या क्या लॉ है एंड क्या उसका डेफिनेशन है, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी, हाँ क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी का भी बोलूंगी, वो जो कोरिलेशन है ना, लाइक इयन एराथेम सिस्टम सीरीज स्टेज, इयन एरा पीरियड इपोक एज, वो किससे क्या कोरिलेटेड है उसको देख लीजिएगा। ये एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, वेरी इजी है, आप उसको रट देंगे तो हो जाएगा, तो उसको भी देख के जाइएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोटोजिक मोबाइल बेल्स, धरवार, सिंहभूम, ये सब आप रामकृष्णन वैद्यनाथन से आपने तो देख लिया होगा, बिकॉज अब तो टाइम नहीं है देखने के लिए। सो प्लीज कुछ भी हो, अगर आपने देखा भी नहीं है ना, तो प्लीज बस सक्सेशन पढ़ के जाइए, सक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, धरवार का हो, सिंह, हाँ। और एक बार इसका मतलब कौन सा मतलब जैसे धरवार हो गया, सिंहभूम हो गया, कौन सा क्रैटन का या कौन सा मोबाइल बेल्ट का मतलब क्या वो मिनरलाइजेशन है, वो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इतना इम्पोर्ट मतलब मेंस की जैसे इतना याद मत रखिए, लेकिन मतलब जैसे धरवार में गोल्ड है और क्या क्या BIF से वो सब हो जाता है, सिंहभूम में क्रोमाइट है, वो सब थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन, ऐसा आई गेस क्वेश्चन कभी आया नहीं है इससे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉसर ग्रुप CITZ का पार्ट है, वो जो 3 ग्रुप है ना, महाकौशल है, बेतुल है, जैसे बेतुल में PBZN हो गया, सॉसर में मैंगनीज हो गया, वो पूछ सकता है, लेकिन सॉसर में मिनरलाइजेशन क्या है और सॉसर किसका पार्ट है, ये सब, और उसका सक्सेशन क्या है, तो इसको ना ये सब थोड़ा देख के जाइए। और कडप्पा एंड विंध्यन का सक्सेशन मैंने बताया, थोड़ा वो जो रामाकृष्णन वैद्यनाथन है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, उसमें रट लीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए उसका, अगर आप लिखेंगे ना आपका ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। तो सक्सेशन बस ऐसे रटिए मत, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सेनोजिक बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है। देन इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना आपको मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन स्टिल ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी मैंने उमेश्वर प्रसाद से पढ़ा था, ठीक है। और लॉरेंस रब भी मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लॉरेंस रब अच्छा बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मिहिर देव का बुक है, अभी वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, वो एक्चुअली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जस्ट कहने के लिए, ठीक है यार। इडली भी एक इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन मुझे थोड़ा वो लॉरेंस रब और मिहिर देव वो सब बुक अच्छा लगता है, ठीक है। अभी के लिए आप उमेश्वर प्रसाद देख के जाइए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। गैलेना किसका और है, स्पेलेराइट क्या है, ऐसे कॉपर में क्या क्या सब और है, ठीक है। जैसे एक ब्राउनाइट है, वो मैंगनीज का है, कॉपर का भी ऐसा कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है, बोरनाइट, कॉपर का बोरनाइट है, तो वो कंफ्यूजिंग है, तो मतलब दिमाग में रखिए, हाँ बोरनाइट कॉपर का है, ब्राउनाइट मैंगनीज का है, कौन सा ऑक्साइड और है, कौन सा सिलिकेट और है, ये सब भी देखिए। GBM में आप देख सकते हैं, ये वाला GBM में पूरा अच्छे से दिया है। और किसमें मतलब अगर सपोज कॉपर का एग्जांपल लेती हूँ, कॉपर का कौन सा और में कॉपर का कंटेंट सबसे ज्यादा है, आई गेस क्यूपराइट या टेनोराइट, ये दोनों में से कौन सा एक है, शायद क्यूपराइट है, बट उसको भी थोड़ा देख के जाइएगा। ऐसे आयरन में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, किसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है। हेमाटाइट इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्ट्रिक, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रिक है ना। हाँ मिनरलोजी मैंने बताने के लिए भूल गए, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो सब देख के जाइए। पर्टिकुलर सिडराइट का एक अलग स्ट्रिक है, ब्लैक है, हेमाटाइट का चेरी रेड है, ठीक है, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाइए। पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा देख के जाइएगा। हाँ, तो कमिंग बैक टू इकोनॉमिक जियोलॉजी, सबका और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो उमेश्वर प्रसाद ही मोस्टली फॉलो कीजिए, और इस GBM में भी बहुत अच्छा दिया है। और ये जो मैग्मेटिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, हाइड्रोथर्मल, ये सब है ना, ये आप GBM से भी पढ़ सकते हैं, उमेश्वर प्रसाद से भी पढ़ सकते हैं, दोनों में ही मोस्टली अच्छा दिया है।
और एक बात बोलूंगी, एक बार गेट में ये क्वेश्चन आया था कि प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन, जैसे राजपुरा दरीबा का मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछा था। एमपीटी है या सेडेक्स है, तो सबका नहीं, बिकॉज अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ना, जैसे क्रोमाइट हो गया, सुकिंदा क्रोमाइट, उसका होस्ट रॉक क्या है, राजपुरा दरीबा उसका होस्ट रॉक, जो सब इम्पोर्टेंट है, जैसे मलंजखंड कॉपर उसका होस्ट रॉक क्या है, बस इम्पोर्टेंट वॉन्ट्स को थोड़ा देख के जाइए। वो कभी नहीं पूछेंगे कि महाकौशल ग्रुप के रिलेटेड एक, आप जब मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे आप पढ़ सकते हैं, एक उसका एक फॉर्मेशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसका क्या होस्ट रॉक है, वो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देयर इज लाइकली चांस कि राजपुरा दरीबा का पूछ दे, सुकिंदा क्रोमाइट, ठीक है, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और हाँ, और एक बात बोलूंगी, स्ट्रैटिग्राफी का बताना भूल गई, जो डब्ल्यूडीसी और ईडीसी का डिफरेंस, ठीक है, कौन किसमें ग्रीन सिस्ट बेल्ट ज्यादा है, क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन सिस्ट बेल्ट, ऐसा पूछ सकता है कि शिमोगा ग्रीन सिस्ट बेल्ट है, वो ईडीसी में आता है कि डब्ल्यूडीसी में आता है, तो वो सब भी थोड़ा देख लीजिए, वो रामकृष्णन वैद्यनाथन में से पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिए। ओके, सॉरी बीच बीच में भूल जाती हूँ मैं, कभी कुछ कुछ पॉइंट्स बताया नहीं था। तो हाँ, तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ना इकोनॉमिक जियोलॉजी का, ये आप उमेश्वर प्रसाद या कहीं से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मिनरल्स का मैंने बोल दिया, वो सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी जैसे पिछला ईयर एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग आयरन मैंगनीज, किसका क्या EH/pH वाला एक क्वेश्चन आया था, कौन सा ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये डायरेक्टली लिखा है लॉरेंस रब में। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट आ जाते हैं, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और एल्स रहने दीजिए अभी के लिए। हाँ, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और कुछ छूट गया हो, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है बस रिवीजन के लिए। ओके, और प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाँ, ये कोल एंड पेट्रोलियम का कोल का देख लीजिए, गंडवाना में क्या है, ठीक है, टर्शियरी में क्या है, दो डिविजन है ना हमारा, गंडवाना का एक है, टर्शियरी का है, वो थोड़ा देख लीजिए। पेट्रोलियम का क्या क्या बेसिन है, ठीक है, वो देख लीजिए। और एक आपको पता होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन की जो वेबसाइट है ना, आप उसमें से पेट्रोलियम का पढ़ सकते हैं, ये मैं मेंस के लिए भी बता रही हूँ, अगर आप मेंस में जो नोट्स बनाने होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो सब कुछ मेंशन हुआ है, असम अरकान बेसिन, कैम्बे बेसिन, और मृणाल सृष्टा को जो बुक मैंने बताया उसमें से देखिएगा, मृणाल सृष्टा में जो ये वाला चैप्टर है पेट्रोलियम का, उसमें मैंने डायरेक्टली लास्ट पेज में उसका लिख दिया है कौन सा सोर्स रॉक है, कौन सा रिजर्वर है रॉक है, ठीक है। अभी याद, कैम्बे शेल जैसे एक होस्ट रॉक है कैम्बे बेसिन का, वो थोड़ा देख के जाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज इसको बिल्कुल भी मत इग्नोर कीजिए। उसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन पे मत जाइए अभी, अभी वो मृणाल सृष्टा से ही देखिए, लेकिन प्लीज उसको देख के जाइए, और क्या क्या बेसिन है, और बेसिन के साथ अटैच क्या क्या कोल फील्ड्स है, ठीक है, जैसे असम अरकान का नहर कोटिया, ये सब कुछ कुछ कोल फील्ड्स हो गया, कैम्बे का भी ऐसा है, राजस्थान का भी कुछ कुछ है, तो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, एक नहीं, बस ये हो गया, हाँ, ये भी लिखा है ना मेजर मिनरल एंड हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया, तो बस उतना देख लीजिए, ठीक है। देन हाइड्रोजियोलॉजी लास्ट यूनिट है, हाइड्रोजियोलॉजी का टॉड इज द बेस्ट बुक, टॉड के अलावा अगर आप कुछ ना भी पढ़े तो दैट विल बी बेटर, अगर टॉड या फेटर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, टॉड और फेटर दोनों ही अच्छा है, अगर दोनों भी अगर आप पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टॉड वुड बी एनफ, ओके। और हाइड्रोजियोलॉजी का मैच मेकिंग में यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी का क्या यूनिट है, ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, ये सब देख के जाइएगा। रेनॉल्ड्स नंबर देख लीजिए, ग्रेटर देन 2000, लेसर देन 2000, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, जैसे डार्सी लॉ का लिमिटेशन है ना, वो बस लैमिनर फ्लो के लिए मतलब एप्लीकेबल है, तो वो सब पूरा देख लीजिए। और एक्वीफर, एक्यूक्लूड, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन कभी कभी आ सकता है, जैसे किसमें पोरोसिटी है लेकिन परमेबिलिटी नहीं है, एक्यूक्लूड हो गया ना, जिसमें हम इकोनॉमिक यील्ड नहीं कर सकते, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मूला, ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या क्या है, जैसे K/B है, ये सब बेसिक छोटा, मतलब इतना, मतलब प्रीलिम्स में इतना कैलकुलेशन तो आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है मोस्टली हाइड्रो का ही आता है, T = K/B, लास्ट ईयर ही ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है,
तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यूनिट्स याद रखिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे कि पेपर 4 होता है ना मेंस का, वैसे डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, फ्लडिंग है, सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक्स है, डीचेस एंड फॉरोज है, क्या क्या टेक्निक्स है, ये पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी से रिलेटेड एक चैप्टर है टॉड में, उसको पूरा पढ़ के जाइए। पाइपर डायग्राम हो गया, क्या बस पाइपर डायग्राम तो नहीं है ना, और कुछ कुछ भी डायग्राम्स है जिससे हम क्वालिटी वाला चीज पता कर सकते हैं, वो सब डायग्राम्स देख के जाइएगा। और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला, हार्डनेस वाला क्वेश्चन आ भी चुका है, वो 2.5 CA 4.1 mg, ठीक है। हाँ, ये सब फिन डायग्राम जो सब भी है, ये सब थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है। और ग्राउंड वाटर क्वालिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे क्या फिजिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ये सब थोड़ा देख के जाइएगा। ग्राउंड वाटर क्वालिटी, देयर इज अ चैप्टर इन बुक ऑफ टॉड, ग्राउंड वाटर क्वालिटी से वो रिलेटेड है, वो वाला चैप्टर देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर ही सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। यूनिट्स देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या बचा है इसमें, हाँ वही कंपोजिशन मैंने बताया ना, तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी वाला चैप्टर देख लीजिए। और आइसोटोप्स का इतना क्वेश्चन नहीं आता, बस देख लीजिए, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर में लिखा हुआ है, जैसे ट्राइटियम हम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर स्टडीज के लिए, ऑक्सीजन आइसोटोप्स, ट्राइटियम, ठीक है, वो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, ये सब है। और बर्नौली इक्वेशन देख लीजिएगा। हाँ, ये जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और Q इज इक्वल टू KIA, कौन सा वो डार्सी लॉ का क्या प्रॉपर फॉर्मूला है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो सब थोड़ा देख लीजिए। हाँ, और एक पोरोसिटी और परमेबिलिटी, पोरोसिटी का एक बताऊंगी, एक सेकेंडरी पोरोसिटी करके एक चीज है, प्राइमरी पोरोसिटी करके एक चीज है। तो सेकेंडरी पोरोसिटी का भी टाइप्स है, ठीक है। आई कैन रिमेम्बर नाउ, एफ से करके कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मृणाल श्रेष्ठा का जो बुक है उसमें हाइड्रोजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें पोरोसिटी के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरोसिटी हो सकते हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस हो गया, बस मोस्टली हो गया, तो बस वही यूनिट्स देख लीजिएगा, मैच मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिए। और आर्टिफिशियल रिचार्ज का स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बनता है, क्या बनता है, क्या चीज क्या है, और ग्राउंड वाटर क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट इग्नोर। आई गेस खत्म हो गया, मोस्टली तो हो गया सब कुछ। हाँ, तो So yeah, ma'am. Any more doubts? जो हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, कि कोई डाउट्स है तो अभी पूछ, कोई there isn't something in the chat box. yeah. Hmm. First of all, I want to say congratulations, ma'am, and Thank you. I want to say that thank you for the clarifying all the doubts and all the things. Yes, okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you. So yeah, there's a question from Sambit Soumyaranjan. Yeah, thank you very much. What approach have you taken previous year? Yeah, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ना रिवाइज कीजिए, आप उससे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल का बोला ना, स्ट्रक्चरल का एक एग्जांपल लेते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता उससे, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका एक वेरिएशन क्या हो सकता है, तो उसको दिमाग में रखिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, इसका वेरिएशन ये एक हो सकता है, तो वैसे टाइप का होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना सब कुछ कीजिए। मैंने बोला ना, टेस्ट सीरीज कभी रेप्लिका नहीं हो सकता कि एक्चुअल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। OMR थोड़ा टाइम लेता है, हाँ ये करेक्ट चीज है। आप OMR ऑनलाइन भी मिलता है, अगर आप ऑर्डर करके उसको मार्क करके टाइमर सेट करके करना चाहे तो, लेकिन स्टिल इतना चाहिए नहीं होता है, यू कैन एडजस्ट दैट आई गेस। सो PYQ जो टेस्ट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब 3-4-5 साल के तो कर ही दीजिए। और GS का भी देखिए, जियोलॉजी का तो इम्पोर्टेंट है ही, और GS का इतना क्वेश्चन आई गेस रिपीट होता नहीं है मोस्टली, बट
थोड़ा उसको देखिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, क्या क्या आता है। जैसे मैंने टाइगर रिजर्व का बोला, इस बार 2 ऐड हुआ है, शायद छत्तीसगढ़ बिलासपुर में और एक तो जगह पे ऐड हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली पूछ देगा इस बार का क्या आया है, वो पूछ सकता है कि उड़ीसा में क्या टाइगर रिजर्व है। तो लाइक these are the variation, so you need to like check that, okay। जियोलॉजी में भी वेरिएशन मार्क कीजिए। अगर 2 साल का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए हाइड्रो का इस साल ये क्वेश्चन आया है तो इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है। हाउ मेनी मॉक टेस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जितना आप देंगे मॉक टेस्ट वो आपका कॉन्फिडेंस रेज करेगा, ठीक है। देयर इज आइडियली नॉट अ पर्टिकुलर लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू। सो जितना आप अच्छा है मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज देना, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और एक बात मैंने जो बोला था, कुछ कुछ चीजें ना हम छोड़ देते हैं, हाँ ये इजी है थोड़ा बाद में देख लेंगे, लेकिन क्या पता आपको बाद में देखने को टाइम मिले या ना मिले, आपको याद आए ना आए। तो टेस्ट सीरीज में ना हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर सपोज आपने गंडवाना फ्लोरा छोड़ दिया है लेकिन आपने टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन देख लिया, तो फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे ये वाला चीज पढ़ना है। तो ठीक है, तो मॉक टेस्ट का वही बोलूंगी, जितना देंगे उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करेंगे। और जो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका आंसर्स भी चेक कीजिए और उसको भी रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज दे दिया और बैठ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स आता है उससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, वो बहुत डिफरेंस लाता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज में आपका कम आया तो मेन एग्जाम में भी कम आएगा, तो प्लीज उसके मार्क्स से डिमोटिवेट मत होइए, ओके। Hope this helps, okay। And then okay, how many questions we should attempt in geology? See, it doesn't matter आप कितना attempt किए हैं, it actually what matters is आपका कितना सही है, क्योंकि आपका जितना सही होता है उससे फिर नेगेटिव हो जाता है। तो एटलीस्ट यू नीड टू फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि अभी मैंने बोला ना 220 to 230 यू नीड टू स्कोर, ओके। सो फॉर अ सेफ साइड टू एटलीस्ट क्लियर मेंस, नॉट ओनली टू क्लियर मेंस बट टिल द इंटरव्यू, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज हियर ओनली यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो लाइक और जो क्वेश्चन आपको डाउट है ना, तो वो बिल्कुल अटेम्प्ट मत ही कीजिए। वाई टू टेक रिस्क, ये नहीं कि हाँ अटेम्प्ट करते जाओ। 120 क्वेश्चंस करना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक अटेम्प्ट 100 to 105 या 110 या 105, और उसमें से एटलीस्ट 95 और 100 शुड बी करेक्ट, सो यू विल बी एटलीस्ट ऑन सेफ साइड, ओके। सो यस 105 to 110 like will be a safe side। मैम राजपुरा दरिया का जो डिपॉजिट है वो एमबीटी है या सेडेक्स है मैम? चलो डाउट। वो सेडेक्स है। जबर का जितना मुझे याद आ रहा है वो जबर का एमबीटी था। राजपुरा दरिया आई गेस सेडेक्स ही है। प्लीज और एक बार चेक कर ले, और मैं चेक कर लूंगी और एक बार। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, यू कैन टेक्स्ट मी, ओके। बट मोस्टली आई थिंक ये सेडेक्स होगा। हाउ टू जीएस पेपर सी, जीएस पेपर का ऐसे मिनिमम या मैक्सिमम ऐसे कुछ नहीं है। वैसे तो मोस्टली क्वालिफाइंग मार्क्स 15 to 20 ही रहता है, ठीक है। मैंने बताया ना 30 to 40 मार्क्स अटेम्प्ट करना, और मतलब अटेम्प्ट नहीं करना, अगर आपका 30 to 40 मार्क्स अगर आ जाता है ना, दैट इज मच मोर देन इनफ, ठीक है। तो लाइक ऐसा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि सब कुछ मत अटेम्प्ट कीजिए। आप जितना श्योर है जीएस का, सॉरी जितना श्योर है जीएस का, बस उतना ही अटेम्प्ट कीजिए। 30 to 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए जो कुछ आता है। ये नहीं कि हाँ गेसवर्क कर ले, गेसवर्क प्लीज बिल्कुल ना जीएस में कीजिए ना पेपर 2 में कीजिए, कुछ भी में मत कीजिए। 30 to 40 मार्क्स इज मोर देन इनफ। कभी कभी कट ऑफ तो वही 15 से 20 इतना जाता, मतलब इतना ज्यादा जाता भी नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको आए बस स्टॉप, लिमिट दैट उसमें, मतलब हाँ अगर आप अप्रोच करना चाहें, कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन, यू कैन टेक अ रिस्क ऑन दैट, बट हिस्ट्री पॉलिटी में आप रिस्क नहीं ले सकते। तो आपका अगर मतलब आपको देख के लग रहा है कि हाँ इतने में हो जाता है, 2 घंटे होते हैं जीएस पेपर के लिए, मुझे बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो इसलिए उसको देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। What are the negative marking? So to be honest, literally I don't remember, but exact value तो ऐसे याद नहीं है, but maybe 16 or 17 like इसके बीचों बीच कुछ था,
इतना याद नहीं है। देखो मैम, मैं एक चीज ऐड करूंगा, करना चाहूंगा। जैसे मैम ने बोला कि आपको गेस, वाइल्ड गेस एकदम नहीं करना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वहां पे आप वाइल्ड गेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे मैम ने बोला साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया है, जहाँ पे आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली भी सही आंसर को डिराइव कर सकते हैं, तो वहां पे गेस करिए। लेकिन दैट गेस शुड बी इंटेलेक्चुअल गेस। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी वाइल्ड गेस लगा रहे हो कि ABCD से चलो बी लगा लेता हूँ, चलो डी लगा लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, देखो कभी हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो आप 25 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करो, दैट इज मोर देन इनफ। कभी हो सकता है कि यूपीएससी, हालांकि आजकल इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया, उस टाइम में आपको इनकेस बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है, आपने कितना रिवाइज किया है, और कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। जैसे मैम ने बोला, वाइल्ड गेस नहीं करना है, एकदम रैंडम गेस नहीं करना है। उसके अलावा जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो उतना अच्छा है। जनरली मैम ने जो रेंज दिया 30 to 40 मार्क्स इज ए वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। जैसे मैम ने भी बोला कि 15 मार्क्स जनरली आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है। तो उससे अगर जितना भी ज्यादा स्कोर कर रहे हो, अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में वाइल्ड गेस नहीं करना है, जहाँ पे नेगेटिव स्कोर हो जाएगा। पता चला कि 15 मार्क्स से भी नीचे आ गया और आपने क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए जो जिसको भी आपने पढ़े हो, जिसको भी आप रिवाइज किए हो, और जहाँ पे आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, लॉजिकली गेस कर सकते हो, वहां पे लॉजिकली गेस करो। अदरवाइज आपका जितना भी नॉलेज है उसको यूज करके एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। अगर क्वेश्चन इजी आ गया, हो सकता है कि आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से हो जाएगा 40 50 60 क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो 25 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी रेंज में, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैम के अंदर कितना क्लैरिटी है। देखो मुझे मैम का जो आज पॉडकास्ट देख के मुझे लास्ट ईयर का अनुष्का मैम का वो याद आ गया, ठीक है। उनके अंदर भी इतना क्लैरिटी था, वो भी मैम का शायद सीनियर है वहाँ पे, BHU में सीनियर था आई थिंक, ठीक है। तो ये यस जो सर, यस सर। क्लैरिटी आता है ना, जब आप बहुत ज्यादा रिवाइज करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, डिस्ट्रैक्शन को हटा के एकदम डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हो, तभी जाके आता है। ये पॉडकास्ट में एकदम मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रहता है, तो मैं जनरली सुनता नहीं हूँ लास्ट तक, ठीक है। लेकिन मैम का हर एक चीज मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं हर एक चीज को, हर एक वर्ड को बहुत ही मतलब सिंसियरिटी के साथ सुन रहा था। क्योंकि कितना क्लैरिटी है, देखो कोई एग्जाम को लेके, कोई पेपर को लेके, उनको एग्जैक्टली पता है कि ये इस बुक में दिया है, उस बुक में दिया है, इस चैप्टर में दिया है, इसको यहाँ से करना है, इसको वहां से करना है, ठीक है। तो इस लेवल का क्लैरिटी लाओ, और इस लेवल का क्लैरिटी कब आएगा, जब बार बार आप रिवाइज करोगे। इसीलिए रिवीजन इज द की। जितना भी पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, मिनिमाइज करो, ठीक है, और पढ़ाई करो, तभी जाके इस लेवल का क्लैरिटी आएगा। और तब आप कोई भी एग्जाम दोगे, गेट दो, नेट दो, GSI दो, कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। जैसे मैम का कल ही रिजल्ट आया OPSC का लेक्चरशिप, उसमें मैम सिर्फ 5 स्कोर नहीं किए, मतलब ऑल इंडिया रैंक 5 तो वो है, मतलब GSI में इस बार का जो 2024 है। लेकिन लास्ट मतलब यस्टरडे ही आपका जो कल ही रिजल्ट आया OPSC का लेक्चरशिप का, उसमें भी सिर्फ 2 पोस्ट था, और मैम का उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो ये जो सिलेक्शन होता है, ऐसा मत सोचो कि ये लक के वजह से हो जाता है, नहीं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका सारे एग्जाम में स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। कैसे आता है? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं, उनके अंदर वो क्लैरिटी आता है। और मैम का आज पॉडकास्ट में वो क्लैरिटी दिख रहा था कि कितना क्लैरिटी है, कितना अच्छे से चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाई करो, ठीक है। मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं लेता हूँ। मैम से आप डिस्कशन करिए, ठीक है। हाँ, यानी कंपाइल्ड सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। सी आपका जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन होता है ना, जैसे स्टडी IQ, दृष्टि IS, मैंने भी डाउनलोड किया था उसको, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, और अभी इस स्टेज में तो ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप उसको पढ़ें, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स आप यूट्यूब चेक कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब, अभी जियो डेस्टिनेशन का भी वीडियोस है, यूट्यूब भी है, आप उससे पढ़ लीजिए। लेकिन एक जो स्टडी IQ वगैरह उसका आता है ना, उसमें इतने सारी चीजें, मतलब ऐसा लगे कि हम पागल हो जाएंगे। तो अभी अभी लाइक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक दैट स्टेप कि हाँ मैं उसको डाउनलोड करके पढ़ूँ, तो उसको अभी मत पढ़िए।
यूट्यूब में देखिए, जियो डेस्टिनेशन का वीडियोस देखिए, ठीक है, वो सब देखिए। और एक मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ, सब लोग इंस्टाग्राम पे होंगे, एक D71 करंट अफेयर्स करके है, ठीक है, वो वाला पेज आप सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी ऐसे मतलब छोटा मोटा सब कुछ रहता है। आई गेस अभी रिजल्ट्स के पहले मैं 2025 का जो प्रिपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट की थी, मैंने उसी से देखा था। कुछ D71 करंट अफेयर्स करके है, वो ऐसे उसका पोस्ट रहता है, सब कुछ मोस्टली आ जाता है उसमें, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बस तो हाँ, बस वही। So any more doubts? I think if there are no more doubts, then we will wrap up. Any more doubts? Last call. Mohammad Almaz Riaz, you wanted to say something? You raised your hand. No? Okay. Okay, cool. Okay, so इसका D71 करंट अफेयर्स ऐसा कुछ है। आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, वेट। ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप इसको सर्च कीजिए। मतलब मैंने थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इससे, मतलब उसका पोस्ट सब है, मतलब मंथ वाइज, जून में क्या है, जुलाई में क्या है, मतलब पर डे का आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये थोड़ा देख। okay, ma'am. So I think we can wrap up today. Thank you for attending this. And one last thing that I would like to ask कि OPSC lecturership जो आप select हुए हैं, तो वहाँ पर नेट आपका क्लियर है? नेट से ही आप नहीं, इसका टू स्टेज प्रोसेस था इसका। मतलब जैसे हमारे प्रीलिम्स होता है और एक इंटरव्यू था। तो प्रीलिम्स में आपका 3 पेपर होते हैं, लाइक पेपर 1 और बाकी 2। पेपर 1 कंसर्न्स विथ जैसे आपका जियोलॉजी में, सॉरी, जी प्रीलिम्स में होता है, GSI का जैसे होता है, लेकिन मोस्ट ना उड़ीसा का बेस्ड वो पूछता है, ठीक है। और बाकी जो 2 पेपर्स है पूरा जियोलॉजी है, ठीक है। और जो इंटरव्यू था उसका भी नॉर्मली लाइक एक टीचिंग सेशन रहता है, थोड़ा आपको मतलब टीचिंग मतलब पढ़ाना पड़ता है बोर्ड के सामने, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। इसका भी एक 2 स्टेज प्रोसेस ही है, मेंस नहीं है इसमें, और नेट नहीं चाहिए, नॉर्मल इसका क्वालिफिकेशन है MSc। Okay, got it. Thank you, ma'am. Okay, thank you everyone for attending this session. Yes, Thank thank you. you. Hope this helps. Okay. Apart from that, I am on Telegram, Instagram, WhatsApp, everywhere. Any doubts you have, you can ask me. Okay, without any hesitation. So yeah, thank you, everyone. So shall I leave the meeting, Prajna? Yeah, I think we can. Yeah. We can wrap up. We can leave Okay. because he's attending the call. He'll not respond. Yeah. Okay. Okay. Thank you, everyone. Good night. Bye bye.